So, welcome back, Mavericks, to this third episode. We will start this episode with one video. Monday, get better. Tuesday, get better. Wednesday, get better, right? And you do that over a period of time, not like 1 month or 2 months. I mean, it's 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 years. And then you can get to where you want to go. Consistency doesn't guarantee that you'll be successful, but not being consistent will guarantee that you won't reach success. An easy productivity hack: instead of spending time getting in the mood to work, just start working. Confront the work. People think they need perfect conditions to start, when in reality, starting is the perfect condition. 1 day in the gym is basically imperceivable. 2 days in the gym, you don't recognize any change whatsoever. 100 days in the gym, and you're almost a new person. 1 day of playing guitar, you can barely play one chord. 100 days of practicing guitar, and you can play literally almost any song. So take the small steps every day. Do what you're supposed to do. And don't expect some incredible results in 1 day or 2 days or 10 days. Worthwhile things take 100 days. They take 500 days. Maybe they take 5,000 days. They take time. If you go to the gym and you work out and you come back and you look in the mirror, you will see nothing. And if you go to the gym the next day and you come back and you look in the mirror, you will see nothing. Clearly there's no results, can't be measured, it must not be effective. So we quit. Or if you fundamentally believe that this is the right course of action and you stick with it, you commit yourself to the regime, the exercise. You can screw it up. You can eat chocolate cake one day, you can skip a day or two. It allows for that. But if you stick with it consistently, I'm not exactly sure what day, but I know you'll start getting into shape. I know it. Going to the gym for 9 hours does not get you into shape. Working out every day for 20 minutes gets you into shape. It's not about the events. It's not about... The purpose of showing this video is simple. Be consistent with your efforts. आपको 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ना डेली, 2 से 3 घंटे ही पढ़ना है अगले 2 साल के लिए, और डेली पढ़ना है. बिल्कुल सिंपल है. अगर आपको ऑफ प्लान करना है तो करो, पर वो प्लान्ड ऑफ होना चाहिए. ऐसा नहीं जब मन किया तब ऑफ ले लिया. पूरे मंथ को प्लान करो, उसके बाद वीक को प्लान करो, और फिर अपने डे को प्लान करो. 1 दिन 2 दिन ऑफ ले सकते हो, 1 दिन ऑफ लो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन नहीं, पर वो प्लान होना चाहिए. ऐसे नहीं कि जब मन किया तब लेना है. डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे ना, वो बेटर है कि हफ्ते में 2 दिन पढ़ लिए, वो भी 5-5 10 घंटे. यूपीएससी की जर्नी में जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है ना, वो है कंसिस्टेंसी. और वो कैसे आएगी? मैराथन कभी तेज दौड़ के नहीं जीती जाती, सबको पता है. आपको धीरे धीरे चलना है, हमें बहुत लंबा रास्ता है, तो कंसिस्टेंट रहो. So this is episode 3, The Dance of Earth. पृथ्वी की कहानी अब तक. The study of Earth so far. तो पिछले 2 एपिसोड में हमने क्या देखा? हमने देखा द ब्यूटी ऑफ अर्थ, हाउ इनक्रेडिबल our earth are. But we also seen the behavior of humans, their practices,
how they are destroying our Mother Earth. Then we have decided we need to protect our Mother Earth. But how? How we can solve this problem, the problem of climate change? Then we decided to solve this problem, we need to understand this problem. When we're trying to understand this problem, we come to know that we cannot solve this problem until and unless we understand this earth. But this earth is very humongous, vast. How we can understand this earth? Then we introduce the concept called system. In system, we understand 6 characteristics, important characteristics of system. Through this concept, we decided to understand the Mother Earth. We break down the Earth into 4 components: lithosphere, hydrosphere, atmosphere, and biosphere. Then we decide we will understand these 4 components. But again, how? How we can understand these 4 components? Then we introduce the tool, that is geography. What is geography? Description of the earth in simple words. Then again we use the concept system to understand geography. Then geography can be divided into 2 components: physical geography and human geography. In physical geography, we have seen physical features and processes. We also visualize through videos what are physical features: ocean, mountain, rivers, all the natural things which is not made by humans. Then we also come to know about processes. What are those processes? Geological, hydrosphere, hydrological process, oceanographic process, climatic process. Then we try to understand the geological process, in which we see further division of geological process into endogenic and exogenic. We started endogenic. Endogenic means the processes which is happening inside the earth. To understand the processes inside the earth, we need to understand the interior of the earth. Then we come to know there are 3 layers of earth: crust, mantle, and core. And there is further subdivision of mantle: outer mantle, inner mantle, outer core, inner core. Then again we raised a question, but how we can understand these layers? How do we know that these layers are, there are 3 layers? Then we study about direct or indirect sources of information. In direct source of information, we come to know about meteoroids, volcanic eruptions, and indirect gravitation field and seismic waves. So the today's story, we will start from seismic waves. But how do we know that the earth core is in a solid state? The knowledge that the earth core is in a solid state comes primarily from seismic study. The study of seismic waves provide a complete picture of the layered interior.
हम सबको पता है कि अर्थ की कोर का टेम्परेचर नियर अबाउट 6000 डिग्री सेल्सियस है। कोई भी ह्यूमंस या कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई मशीन वहाँ तक नहीं पहुँची है। फिर भी हमें पता है कि जो अर्थ का कोर है वो सॉलिड है, मेंटल, आउटर मेंटल, फ्लूइड स्टेट में है। कैसे पता हमें? डायरेक्ट सोर्सेस की तो लिमिटेशंस है कि वो अप टू 1 लिमिट्स के आगे वो हमें कोई भी इंफॉर्मेशन दे नहीं सकते। बट वी हैव अ इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन which gave us a huge amount of information about the interior of the earth. That is called seismic waves. We will extract key insight on seismic waves by engaging with these two videos. We will understand what is seismic wave, where it is originate, and how it is originate. The answer of these 3 questions lies in these 2 videos. So watch it carefully. इस वीडियो से और नेक्स्ट वीडियो से हम विजुलाइज करेंगे व्हाट आर साइज्मिक वेव्स। 3 क्वेश्चनों के आंसर चाहिए हमें इन 2 वीडियो से। व्हाट आर साइज्मिक वेव्स, where it is originate, and third one is how it is originate. What factor cause the seismic waves? Okay, so let's start. Is made of 4 major layers. The inner core, We already know about the layers of the earth. outer core, mantle and crust. The crust is where the cities, mountains, rivers and oceans are there. Mantle is the molten part. The crust is just 1% of Earth's total volume. At the oceans, crust is usually 5 to 10 kilometers thick, and on land, they are like 30 to 50 kilometers thick. And also, crust is not just one single layer. Instead, it is like multiple puzzle pieces put together. These puzzle Visualize this picture. This is how tectonic plates looks like. ये ऐसे जो हमारी क्रस्ट है वो ऐसे दिखती है, ऐसे टुकड़ों में बांटी हुई है ये क्रस्ट हमारी। pieces are called the tectonic plates. एक बार फिर से ध्यान से देखो, विजुलाइज करो इसे। There are majorly 7 tectonic plates like the 7 major tectonic plates. Don't worry, there is a dedicated episode for tectonic plates. You just watch this video. You don't need to remember or learn about any fact about tectonic plate, but you have to visualize how tectonic plate look alike. continents and further divided into dozens of other smaller plates. These tectonic plates on mantle is like plastic sheets on water. They're just constantly floating and moving. But they're usually attached or touching on the edges. The plates are moving. Now everybody know how tectonic plate looks like. कैसे दिखने में है tectonic plate? I think through that video it is clear कि जो अर्थ की क्रस्ट है वो एक्चुअल में दिखती कैसी है. Now watch this video. Seismic activity is also one of the most important sources of information about the interior of the earth. In this video, we're going to read about the earthquakes. So what is an earthquake? It simply means shaking of the earth. It is caused due to release of energy, which generates waves that travel in all directions.
Now the question is, why does the earth shake? To understand that, you will have to look at this picture. This is a fault. A fault is a sharp break in the crustal rocks. A fault is a sharp break in the crustal rock. Write it down. If someone asks you, what is fault? A fault is a sharp break in the crustal rocks. Okay? Rocks near a fault tend to move in opposite directions. That creates friction, but at some point of time, their movements overcome the friction. As a result, This picture depicts the idea of plate tectonic movement. Consider these two different object as a tectonic plate. ये दोनों जो ऑब्जेक्ट है इसको टेक्टोनिक प्लेट समझो. they slide past one another. This causes a release of energy. जब ये दोनों मूव करेगी तो एक पॉइंट से एनर्जी रिलीज होगी. And the energy waves travel in all directions. The point where the energy is released is called. मैं चाहता हूं कि आप ये डायग्राम बनाओ और उसमें लिखो द पॉइंट वेयर एनर्जी इज रिलीज्ड इज कॉल्ड हाइपोसेंटर. जहां से एनर्जी रिलीज होती है उसको हाइपोसेंटर बोलते हैं. Called the focus of an earthquake, or there is also a term given to it called the hypocenter. The energy waves traveling in different directions. We can call this point a hypocenter. We can also call this point as a focus. So दो नाम हो गए हमारे पास, एक फोकस और एक हाइपोसेंटर. Reach the surface. The point on the surface nearest to the focus is called epicenter. Also write it down. The point which is nearest to the focus is called epicenter. और पर वो पॉइंट कहाँ होना चाहिए? सरफेस पे. उसको एपीसेंटर बोलेंगे. जहाँ से एनर्जी रिलीज हुई उसको फोकस या हाइपोसेंटर, और जो अर्थ सरफेस पे जो सबसे नियरेस्ट पॉइंट होगा उस पर्टिकुलर लोकेशन से फोकस से उसको बोलेंगे हम एपीसेंटर. फॉल्ट हमने ऑलरेडी देख लिया स्टार्टिंग में. This place is the first one to experience the waves. All natural earthquakes take place in the lithosphere. Write it down. Very important. All natural earthquakes take place in the lithosphere. Saurav, tell me, what is lithosphere? Sir, lithosphere is the public. आवाज नहीं आ रही आपकी. Hello. हाँ, now you are audible. Lithosphere is the area of Earth which consists of land masses. Okay, but that's not the exact answer. Yes. Deepak, Yes, sir. Lithospheres consist of ocean crust and continental crust and upper mantle. very good. The lithosphere refers to the portion of depth up to 200 km from the surface of the earth. An instrument called seismograph records the wave. Seismic waves अर्थ के इंटीरियर में ओरिजिनेट होती है
उस वेव्स को हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं? उस वेव्स को रिकॉर्ड करते हैं सिस्मोग्राफ से। राइट इट डाउन। हम वेव्स को रिकॉर्ड करते हैं सिस्मोग्राफ से। SCISMOGRAPH, सिस्मोग्राफ। Wave reaching the surface. The waves look something like this. The curve shows three distinct sections, each representing different types of wave patterns. We'll get back to this pattern in a moment. Earthquake waves are basically of two types, body waves and surface waves. Write it down. Earthquake waves are basically of two types, body waves and surface waves. ऋतिक, इस हाइपोसेंटर को हम और क्या बोल सकते हैं? Focus. लोकस या फोकस? Focus. Focus. ओके, गुड। I need you to understand the term body waves. Sounds a little larger within the body, right? टू टाइप्स ऑफ वेव्स है, बॉडी वेव्स और सरफेस वेव। वेरी इजी टू रिमेंबर। द वेव्स विच आर इन इनसाइड द अर्थ, that is body, and outside the earth on the surface, that is surface wave. So the body waves are generated due to the release of energy at the focus, that is the epicenter, and moves in all direction, traveling through the body of the earth. You know, it travels internally within the earth's surface and moves the interior of the earth. That's why it is referred to as body waves, because it is traveling through the body of the earth like a tremor. Now it is obvious that when these body waves move towards the surface, they will come in contact with the surface rocks and generate new set of waves. These are called surface waves. Now the velocity of waves changes as they travel through materials with different densities. And we know. Write it down. Don't worry. जो हम थिंग्स नोट डाउन कर रहे हैं, फैक्ट्स नोट डाउन कर रहे हैं, उसको हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे. As of now, you just have to write it down. Know that the materials with higher density reside downwards. We already know about this fact. जैसे जैसे हम अर्थ की कोर की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे मटेरियल की डेंसिटी इंक्रीज होगी. Therefore, the denser the material, the higher is the velocity. Write it down. The denser the material, the higher the velocity. Their direction also changes as they reflect or. I think आपने ऑलरेडी इस इमेज को ड्रॉ कर लिया है. अगर नहीं किया है तो 10 सेकंड आपके पास, ड्रॉ कर लो. जहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी उसको हाइपोसेंटर या फोकस बोलेंगे. जो उससे सबसे नज़दीक अर्थ का सरफेस होगा उसको एपिसेंटर, फॉल्ट. और जब बॉडी वेव ट्रैवल करेगी नियर द सरफेस, जो रॉक होंगे वो रॉक क्या करेंगे, न्यू टाइप ऑफ एनर्जी वेव्स को फॉर्म करेंगे. और उन वेव्स को क्या बोलेंगे हम, सरफेस वेव्स. We have set of information, a little idea about seismic waves. Now we will understand seismic wave through the method of dialogue. So tell me, Ritik, after watching those two videos, what is your understanding about seismic waves? Seismic waves are generally produced inside the earth, mainly in the inner mantle. Inner mantle? Yes, inner mantle में seismic waves produce होती हैं. Okay, continue. And
These waves, when produces energy also Okay. that Saurav, causes. what is your understanding? The आपकी आवाज़ बड़ी seismic कम आ wave, रही है. the seismic waves are generated in the inside the earth, Okay. and the there are some there is a energy source which through which energy is released. And what are those source? What is that source? वो source क्या है? Hypos hypocenter, sir. Hypocenter is not a source. Okay, sir. Hypocenter is a identity which we gave to that particular location. Okay. जहाँ से एनर्जी रिलीज हुई उसको या तो हम फोकस बोलेंगे या हाइपोसेंटर बोलेंगे. बट दैट लोकेशन इज नॉट अ सोर्स. एनर्जी, we will discuss why that energy released. Okay. Okay, sir. हमने Sir, what is it called then? सॉरी क्या कहा जाता है उसे सर फिर? हम डिस्कस करेंगे. ओके सर. नो वरीज. 3 क्वेश्चन है. स्विच ऑफ योर माइक. व्हाट इज seismic waves, where it is originating, and how it is originating. तो seismic waves क्या है? Seismic wave refers to the vibration or waves generated within the earth's crust due to natural event like volcanic activity, tectonic movement, or due to man-made activity like drilling. और क्या हो सकती है? दीपक, साइस्मिक वेव्स ह्यूमंस के द्वारा कैसे ओरिजिनेट हो सकती है? एक तो ड्रिलिंग हो गया, और क्या हो सकता है? Sir. Yes, sir. साइस्मिक वेव्स एक तो ड्रिलिंग के कारण ओरिजिनेट हो सकती हैं, और क्या Yes, रीजन हो sir. सकता है? सर बम्बार्डिंग से भी हो सकती है. यस, वेरी गुड. और क्या हो सकता है? ये 2 रीजन है मेनली. We know what are seismic waves? These are vibrations which is originate due to human made reason or natural events. What are those natural events? Volcanic activity and tectonic movement. हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि टेक्टोनिक प्लेट्स कैसी होती है. अभी तक आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जब वो टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करेगी तो 2 प्लेटें जब आपस में मूव करेगी, आपस के साथ वो टकराएगी या दूर जाएगी, तो वो एनर्जी रिलीज करेगी. At a particular location from where energy is released, we call it hypocenter. और उससे जो नियरेस्ट पॉइंट होगा सरफेस का, अर्थ के सरफेस का, उसको बोलेंगे एपीसेंटर. ओके. साइस्मिक वेव्स क्या होती है, अगर किसी को क्लैरिटी नहीं है तो पूछ सकता है, तभी हम आगे जाएंगे. सर एक बार डेफिनेशन रिपीट कर दो. Seismic waves refers to the vibration generated within the earth crust due to natural events. लिखा है the portion of the interior beyond the crust is called mantle. The mantle extends from up to the depth of 2900 kilometer. Okay. The upper portion of the mantle is called asthenosphere. Okay.
द अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल इज कॉल्ड asthenosphere. It is considered to be extending up to 400 kilometer. It is the main source of magma that finds eruption. हाँ, अब मैं समझ गया. जो अपर मेंटल है ना, वो तीन पार्टों में डिवाइड है. 1, 2 और 3. ठीक है ना. जो अपर सॉलिड पार्ट है ना अपर मेंटल का, अपर सॉलिड पार्ट ऑफ अपर मेंटल एंड द क्रस्ट इज कॉल्ड लिथोस्फीयर. ऐसा ही है. हाँ, ऐसा ही है. क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल. उसके बाद जो सेकंड लेयर है मेंटल की, अपर मेंटल की, वो एस्थेनोस्फीयर है, जो कि फ्लूइड स्टेट में है. उसके नीचे अगेन जो मेरी मेंटल है वो सॉलिड हो रही है. उसके बाद जो मेरा आउटर कोर है वो लिक्विड है, इनर कोर वो मेरा सॉलिड है. क्लियर हो गया ना ये. जो मेरी अपर मेंटल है वो 3 पार्ट में डिवाइड है. सबसे पहले सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर सेमी लिक्विड, और लोअर मेंटल मेरी सॉलिड. सौरभ, अगर मैं आपसे पूछूं कि लिथोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ, तो आप क्या बोलोगे? सर, ओशनिक क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और अपर मेंटल, मोस्ट ऑफ द सॉलिड पार्ट. और अपर मेंटल को कितनी लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं हम? 3. कौन कौन सी? सर, पहली तो हो गई सॉलिड मेंटल. हाँ. उसके नीचे एस्थेनोस्फीयर. हाँ. और उसके नीचे मेंटल. मेंटल, या इसको मतलब ऐसे कर सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा सॉलिड, फिर उससे कम सॉलिड, फिर उससे कम सॉलिड. ओके. इस तरह से मतलब कि उसकी जो सॉलिड प्रॉपर्टी है वो डिक्रीज हो रही है जैसे जैसे वो नीचे जा रही है. ठीक है. और जो लोअर मेंटल है वो आपकी सॉलिड है, और आउटर कोर लिक्विड और इनर कोर सॉलिड है. ओके सर. ओके. यस सर. अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं अब, डज द क्रस्ट और द लिथोस्फीयर फ्लोट ऑन द एस्थेनोस्फीयर, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऋतिक? डज द क्रस्ट और द लिथोस्फीयर फ्लोट ऑन द एस्थेनोस्फीयर? So lithosphere mainly floats on the asthenosphere. So lithosphere mainly consists of oceanic crust, continental crust, and uppermost solid part of the upper mantle. Now the question is, how do earthquake waves help us study the earth interior? हमें ये पता लग गया कि seismic waves क्या होती है. ऋतिक, टर्न ऑफ योर माइक. ये कहाँ पे ओरिजिनेट होती है? मेनली और द earthquakes originate in lithosphere. ओके. हमें ये भी पता लग गया कि हम इस साइस्मिक वेव्स को रिकॉर्ड कैसे करते हैं. हमारे पास सिस्मोग्राफ है. ओके. हमें ये भी पता लग गया कि हमने फर्दर डिवाइड किया है इन साइस्मिक वेव्स को 2 टाइप्स में, बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव. फर्दर बॉडी वेव्स भी 2 टाइप की होती है, प्राइमरी वेव एंड सेकेंडरी वेव. नाउ द क्वेश्चन आर, हाउ डू वी नो डैट कि कोई वेव प्राइमरी और सेकेंडरी है? इट्स अ वेरी सिंपल आंसर. जो सिस्मोग्राफ पे पहले डिटेक्ट होंगी
उन वेव्स को बोलेंगे प्राइमरी। जो बाद में डिटेक्ट होगी उसको बोलेंगे सेकेंडरी वेव्स। जैसे बॉडी वेव्स 2 टाइप की है, वैसे ही सरफेस वेव भी 2 टाइप्स की है, लव वेव एंड रेली वेव। जो सरफेस वेव्स है वो मोर डिस्ट्रक्टिव है एज कंपेयर टू बॉडी वेव्स। लग गया कि बॉडी वेव्स 2 टाइप की है और सरफेस वेव भी 2 टाइप की है, प्राइमरी वेव एंड सेकेंडरी वेव, लव वेव एंड रेली वेव, RAYLEIGH। आपने DSLR सुना है? DSLR कैमरा, वैसे ही ये है PSLR, प्राइमरी, सेकेंडरी, लव एंड रेली वेव्स। Primary waves move faster and are first to arrive at the surface. They travel through gas, liquid and solid material. जो मेरी प्राइमरी वेव्स हैं, मैं एक बार ना आपको विजुलाइज कराता हूँ कि एक्चुअल में ये वेव्स होती कैसी है। अभी मुझे लगता है कि आपके दिमाग में ना आप विजुलाइज नहीं कर पा रहे होंगे। मैं एक बार आपको इसको ध्यान से देखना। सौरभ, ये कौन सा पॉइंट है? कौन सा सर? आवाज नहीं आ रही आपकी। कौन सा सर? ये ब्लू वाला, ब्लू एरो वाला? जहाँ पे मैं वो कर रहा हूँ, कर्सर घुमा रहा हूँ। हाइपो सेंटर है सर ये। यस, और ये वाले सिस्मोग्राफ है। ओके सर। ओके, और जो सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड क्या कर रहा है, ये ऊपर चल रही है। ओके, जो ब्लू एरो है सर, ये सिस्मोग्राफ है मेरे 2। ऐसे मैंने अलग अलग लोकेशन पे सिस्मोग्राफ लगाया है पूरी अर्थ पर। अब देखो आगे क्या होता है। इस पे आप देख पा रहे हो कुछ वेव कोर से ट्रैवल कर पा रही है और कुछ वेव कोर से ट्रैवल नहीं कर पा रही। जैसे रेड वेव और ये येलो वाली वेव है, ये कोर से ट्रैवल कर पा रही है, फिर ये ब्लू और ग्रीन ना, ये नहीं कर पा रही। ध्यान से देखना इस फिनोमिना को। एक बार फिर से देखो, मैं चाहता हूँ अच्छे से विजुलाइज करो इसको। जो ऊपर चल रही है ना, ये भी देखते रहना। अब आपको पता लग गया होगा कि साइस्मिक वेव्स ट्रैवल कैसे करती है, और हमें यह भी पता है कि 2 टाइप की साइस्मिक वेव्स है, बॉडी वेव्स और सरफेस वेव। बॉडी वेव्स भी 2 टाइप की है, प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव्स, और सरफेस वेव भी 2 टाइप की है, लव वेव और रेली वेव। ओके, now the question is, how do these waves help us to study the earth interior? सोचो कि कैसे हमें पता लगता होगा इन साइस्मिक वेव से कि जो अर्थ की इंटीरियर है ना, वो अलग अलग लेयर्स में है।
क्या लगता है ऋतिक आपको? सर सिस्मिक वेव्स जो है वो उनके आगे डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो कुछ वेव्स ऐसे हैं वो अ, तीनों टाइप के मटेरियल्स में, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस मटेरियल से ट्रैवल कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अलग अलग लेयर की अलग अलग प्रॉपर्टीज है। तो वैसे ही कुछ फॉर एग्जांपल अगर पी वेव्स प्राइमरी वेव्स हैं, वो ट्रैवल कर सकती हैं तीनों मटेरियल्स में। आई डोंट नो एग्जैक्टली बट सेकेंडरी वेव शायद ना कर पाए। तो उनसे कुछ कंक्लूजन निकलेगा कि जो डिफरेंट लेयर्स हैं जो कि जिनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। ओके, जो मेरी प्राइमरी वेव्स है ना, टर्न ऑफ योर माइक ऋतिक, they can travel through gases, liquid and solid material. और जो मेरी सरफेस वेव है ना, they can travel only through solid material. We know surface waves are two types, love wave and Rayleigh waves. Love waves cause horizontal side to side motion and are faster than Rayleigh waves. And Rayleigh wave cause rolling elliptical motion like ocean waves, but slower than love waves and tend to cause most damage. तो जो मेरी रेली वेव्स है ना, वो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिबल है। सौरभ, Yes, sir. मान लो आप आर्ट आर्किटेक्ट हो और आपको एक बिल्डिंग बनानी है अर्थ को एक प्रोन एरिया पे, तो Okay. आपको सबसे ज़्यादा डर कौन सी वेव से होगा? जैसे आपने बनाया सर रैली वेव से। यस, ये सबसे डिस्ट्रक्टिबल वेव्स होती हैं। यस सर। यार हमने देखा कि हम इनको रिकॉर्ड कैसे करते हैं? सिस्मोग्राफ से। सिस्मोग्राम में एक हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है सिस्मोग्राफ। Why analyzing the speed, write it down. By analyzing the speed, intensity and direction of the seismic waves, scientists can gain insight into the earth interior. Now question to you Deepak, will the reading on a seismograph be the same for all seismic waves? No, sir. Why? Because सर अलग अलग उसमें अलग अलग इंटेंसिटी से ट्रेवल करेगी ना सर। लिक्विड में अलग इंटेंसिटी होगी, सॉलिड में अलग। Somewhat your answer is right but not in a right direction. हमें पता है, स्विच ऑफ योर माइक। हमें पता है जो मेरी प्राइमरी वेव्स है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में मूव कर सकती है, तो उसकी रीडिंग अलग टाइप की होगी। हमें पता है जो मेरी सरफेस वेव है वो ओनली सॉलिड से पास होती है, तो उसकी जो सिस्मोग्राफ में जो वेव आएगी वो अलग आएगी। तो हमें ये
इससे क्या पता लग रहा है कि जो हमारे अर्थ का इंटीरियर है ना, वो अलग अलग लेयर्स में बंटा हुआ है. Shadow zones are the region where seismic waves do not reach. What are shadow zones? We will understand shadow zones through this video. शैडो जोन को जानने से पहले हमें अर्थक्वेक के बारे में जानना ज़रूरी है. अर्थक्वेक इज नथिंग बट शेकिंग ऑफ ग्राउंड और इसका रीज़न है एनर्जी जो फॉल्ट से रिलीज होती है, जिसकी वजह से वेव जनरेट होती हैं और अर्थ. Now tell me, Saurav, what is fault? जो अर्थ अर्थ की सरफेस पे जो क्रैक आती है ना सर, उसको फॉल्ट क्रैक कहते हैं. Okay, वो fault आया क्यों? सर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से. यार आपकी माइक की आवाज़ नहीं आती यार. एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से वो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट क्यों हुई? सर. वो जो प्लेट्स है ना एक दूसरे से टकराई उसकी वजह से. या टकराई या दूर गई? सर टकरा के फिर वो ऐसे हुई ना. नहीं नहीं, या तो वो टकराएगी तो एनर्जी रिलीज होगी, या दोनों से ओके. दूर जाएगी तो एनर्जी रिलीज होगी. यस सर. ओके. ओके सर. अर्थक्वेक आता है. अर्थ के क्रिस्टल रॉक पे जो शार्प ब्रेक होता है उसे हम फॉल्ट कहते हैं, और जिस फॉल्ट के अलोंग जो हमारी सरफेस रॉक्स होती हैं जब वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, और इसी की वजह से एनर्जी रिलीज होती है, और इस एनर्जी रिलीज होने की वजह से वेव्स आती है और हमें अर्थक्वेक के झटके महसूस होते हैं. जिस पॉइंट से ये जो हमारी वेव्स हैं, अर्थक्वेक वाली जो हमारी वेव्स हैं वो रिलीज होती हैं, उस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं या फिर हाइपोसेंटर. इस हाइपोसेंटर से, इस फोकस से जो हमारी वेव्स हैं वो चारों डायरेक्शन में मूव करती हैं, और उस पॉइंट पे, अर्थ के उस पॉइंट पे जहां ये वेव सबसे पहले रिकॉर्ड होती हैं, उस पॉइंट को हम एपिसेंटर बोलते हैं. तो हमने दो बेसिक वर्ड्स देखे, एपिसेंटर क्या होता है और फोकस क्या होता है. जो हमारी सिस्मिक वेव्स हैं वो तीन टाइप की होती हैं, पी वेव्स, एस वेव्स और सरफेस वेव्स. इन तीनों के अलग अलग फीचर्स होते. ये मेरी प्राइमरी वेव और सरफेस वेव, प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव्स, ये मेरी बॉडी वेव्स, और इसने सिर्फ एक ही वेव बताई, रिली वेव. इसमें लव वेव भी होती है. एनसीईआरटी में दोनों दिए तो हम दोनों को पढ़ेंगे, रिली वेव और लव वेव. होते हैं. जो पी वेव्स हमारी होती है वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इसको नोट कर लेना, तीनों से पास हो सकती है. लेकिन जो हमारी सरफेस वेव्स हैं वो सिर्फ सॉलिड से पास हो सकती हैं, और जो हमारी पी वेव्स और सरफेस वेव्स है इसे हम बॉडी वेव्स भी कहते हैं. ये जो बॉडी वेव्स होती है वो इंटीरियर ऑफ द अर्थ में ट्रैवल करती है, बेसिकली लिथोस्फीयर पे ट्रैवल करती है. जब ये बॉडी वेव्स सरफेस रॉक से टकराती हैं तो इस टकराव की वजह से जो वेव्स जनरेट होती हैं उसे ही हम सरफेस वेव्स बोलते हैं, और यही सरफेस वेव्स हैं जो हमें अर्थक्वेक के दौरान महसूस होती है. सरफेस वेव्स सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव वेव्स होती हैं. सरफेस वेव ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है एज कम्पेयर टू बॉडी वेव्स. जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमारी पी वेव्स हैं वो सबसे फास्ट ट्रैवल करती हैं, देन हमारी एस वेव्स होती है, देन हमारी सरफेस वेव्स होती हैं. तो हमने देखा कि अर्थक्वेक से तीन वेव्स जनरेट होती हैं. अब हम शैडो जोन पे मूव करते हैं. जब हम पी वेव्स को अर्थक्वेक के एपिसेंटर से मेजर करते हैं तो हम पाते हैं कि जो पी वेव्स है वो ऑल ओवर द अर्थ मौजूद नहीं है. अगर हम पी को या एपिसेंटर को 0 डिग्री माने तो हम देखते हैं कि जो पी वेव्स हैं वो 0 डिग्री से लेके 105 डिग्री तक प्रेजेंट है, और इसके बियॉन्ड 105 डिग्री से 145 डिग्री तक जो हमारी पी वेव्स हैं. सौरभ, ऐसा क्यों है? 105 से लेके 104 के बीच में गैप क्यों है? पता नहीं सर. देखो ना, जो मेरी सरफेस वेव है
वो कौन कौन से मटेरियल से पास हो सकती है? सॉलिड ओनली सर, ओनली? सॉलिड। तो सबसे ऊपर वाली लेयर कौन सी है मेरी अर्थ की? क्रस्ट। उसके नीचे मेंटल। सर मेंटल। अपर मेंटल और लोअर मेंटल। अपर मेंटल कौन सी स्टेट हाँ में है? सर, मोल्टन स्टेट में है वो। तो क्या मेरी सरफेस वेव वहां से पास हो जाएगी? नहीं, नहीं होगी ना। नहीं होगी सर। ये देखो इन्होंने बताई है ना, जो प्राइमरी वेव्स है वो हर जगह से पास हो रही है, हाँ, पर जो मेरी सेकेंडरी वेव्स है रेड कलर में, वो सिर्फ सॉलिड में से ही पास हो रही है। सॉलिड में से पास हो रही है। ओके। वो एब्सेंट है, ये वाला रीजन। इसका रीजन क्या है एब्सेंट होने का? इसका रीजन है हमारा इंटीरियर ऑफ द अर्थ। हम सभी को पता है जो हमारा आउटर कोर है वो लिक्विड फॉर्म में है, एंड देन हमारा जो इनर कोर है वो सॉलिड फॉर्म में है, जिसकी वजह से डेंसिटी डिफरेंस होता है। और जो हमारी पी वेव्स हैं जब वो आउटर कोर से ट्रैवल करती हैं तो डेंसिटी डिफरेंस की वजह से रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन की वजह से हमारी प्री वेव है वो रिफ्लेक्ट होती है और दोबारा अर्थ पे 145 डिग्री पे प्रेजेंट होती है। तो जो ये एरिया रह जाता है, इस पर्टिकुलर फैक्ट्स को दोबारा से सुनो। पी वेव्स हैं जब वो आउटर कोर से ट्रैवल करते हैं डेंसिटी डिफरेंस होता है। और जो हम इनर इसका एब्सेंट है, अभी ये ध्यान वाला से सुनना। रीजन। इसका रीजन क्या है एब्सेंट होने का? इसका रीजन है हमारा इंटीरियर ऑफ द अर्थ। हम सभी को पता है जो हमारा आउट 105 और 145 के बीच में जो रेज डिफ्लेक्ट नहीं हो रही, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है कोर ऑफ द अर्थ। आउटर कोर है वो लिक्विड फॉर्म में है, एंड देन हमारा जो इनर कोर है वो सॉलिड फॉर्म में है, जिसकी वजह से डेंसिटी डिफरेंस होता है। और जो ड्यू टू द डेंसिटी डिफरेंस, हमारी पी वेव्स हैं जब वो आउटर कोर से ट्रैवल करती हैं तो डेंसिटी डिफरेंस की वजह से रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन की वजह से हमारी प्री वेव है वो रिफ्लेक्ट होती है और दोबारा अर्थ पे 145 डिग्री पे प्रेजेंट होती ऋतिक, यस सर, जो रिफ्रैक्शन हुआ वो क्यों हुआ? ड्यू टू डेंसिटी वेरिएशन। अगर डेंसिटी वेरिएशन नहीं होता तो क्या होता? तो वो इजीली पास आउट हो जाते हैं। स्ट्रेट। यस सर। तो रिफ्रैक्शन नहीं होता, स्ट्रेट पास हो जाती। पर डेंसिटी डिफरेंस कैसे वेव्स को रिफ्लेक्ट कर सकता है? सर ऐसे कर सकता है क्योंकि जो अब प्राइमरी वेव्स तो वो कर जाती हैं सारे में ट्रांसफर, बट डोंट नो एग्जैक्टली सर। Write it down. The denser the material, the higher the velocity. But why? Because in the denser material, the particles are situated closely, so they move faster. लेस डेंस में पार्टिकल दूर दूर होते हैं तो वेव्स मूव स्लोली एज कंपेयर टू डेंसर मटेरियल। ओके, रिपीट करना सर दोबारा। जो seismic waves can travel faster in the denser material. क्यों? क्योंकि जो डेंस मटेरियल होगा उसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में होंगे, ज़्यादा क्लोज होंगे, और लेस डेंस में थोड़े थोड़े दूर होंगे। ओके, होती है। तो जो ये एरिया रह जाता है 105 से 145 डिग्री वाला,
इसे ही हम पी वेव का शैडो जोन कहते हैं। देन एस वेव का शैडो जोन क्या होता है? तो हमें एस वेव की प्रॉपर्टी पता है कि जो एस वेव है वो सिर्फ सॉलिड से ट्रैवल करती है, वो लिक्विड माइक से बंद या कर दो, गैस इसका माइक ऑन है। मैटर से ट्रैवल नहीं करती, जिसकी वजह से क्या होता है, जो एस वेव है वो 0 डिग्री से लेके 105 डिग्री तक प्रेजेंट रहती है, और इसके बियॉन्ड वाला जो एरिया है वहां पे ये एब्सेंट रहती हैं। बट एब्सेंट क्यों रहती है? एब्सेंट रहने का रीजन है हमारा इंटीरियर ऑफ द अर्थ। हमें पता है कि जो हमारा आउटर कोर है वो लिक्विड फॉर्म में है। लिक्विड होने की वजह से हमारी जो एस वेव है वो लिक्विड से पास नहीं हो पाती, और इसके बियॉन्ड वाला एरिया 105 डिग्री के बियॉन्ड वाला एरिया, उस एरिया में हमारी जो एस वेव है वो एब्सेंट रहती है। इसी एरिया को हम क्या कहते हैं? एस वेव का शैडो जोन। इसका मतलब हुआ कि ये 105 डिग्री से डायग्राम बनाओ दोनों, ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ये पी वेव शैडो जोन है और ये एस जोन, एस वेव शैडो जोन है। दो मिनट देता हूँ, आप बनाओ इसको। इसको ना 2-3 बार बाद में प्रैक्टिस भी करना, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद करना ही पड़ेगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आए हैं यूपीएससी के पीवाईक्यू में, दैट वी विल आल्सो डिस्कस। We will again discuss about the shadow zone. During an earthquake, seismic waves, P waves and S waves travel through the earth. We know about this fact. पर इंटरेस्टिंगली, जैसा कि हमने देखा कि एक रीजन ऐसा भी होता है जहां से ये वेव पास नहीं करती। We know, we call it shadow zone. सौरभ, हम इसको शैडो ही क्यों बोलते हैं? कोई और नेम क्यों नहीं? सर ये क्योंकि वहाँ एक परछाई की तरह होगा वो, मतलब जैसे वहां से पास नहीं होगा बिल्कुल कोई भी, और डार्क है वो। यस। पर ये होता क्यों है, ये समझने के लिए ऑलरेडी हमने एक वीडियो देखी है। इसको समझने के लिए हमें साइस्मिक वेव्स की बिहेवियर को समझना पड़ेगा। एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, वी हैव द नॉलेज अबाउट द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ। पी वेव्स जो प्राइमरी सिस्मिक वेव्स होती हैं वो सॉलिड, लिक्विड
और गैसी मटेरियल से गुजर सकती हैं, वी ऑलरेडी नो। पर जब ये वेव्स कोर और मेंटल की बाउंड्री पे पहुंचती है ना, जहां आउटर कोर लिक्विड है, तो ये रिफ्रैक्ट REFRACT हो जाती हैं, मतलब बेंड हो जाती हैं। ये दिख रहा है आपको? ये रिफ्रैक्ट हुई है। इस बेंडिंग की वजह से पी वेव एक स्पेसिफिक रीजन तक नहीं पहुंच पाती, और वो रीजन कौन सा है? द रीजन लाइज इन बिटवीन 105 एंड 145 डिग्री। अब बात एस वेव्स की, जो सेकेंडरी वेव्स हैं। ये वेव्स बिल्कुल भी लिक्विड से नहीं गुजर सकती। हमें पता है क्यों नहीं गुजर सकती, क्योंकि ये सिर्फ सॉलिड से पास हो सकती हैं। जब ये वेव्स लिक्विड आउटर कोर से टकराती हैं तो वो कंप्लीटली ब्लॉक हो जाती हैं। क्यों ब्लॉक हो जाती है? क्योंकि हमें पता है कि ये लिक्विड से पास नहीं हो सकती। तो इसका शैडो जोन कितना बड़ा बनता है ऋतिक? ज्यादा बड़ा शैडो जोन ये किसका है, पी वेव्स का या एस वेव का? एस वेव का सर, क्यों? क्योंकि सर जो एस वेव्स हैं वो लिक्विड से ट्रैवल नहीं कर सकती हैं, वेयर पी वेव्स कर सकती हैं, बट वो बेंड हो जाती हैं। यस। बट सर मेरा क्वेश्चन था कि मेंटल भी तो लिक्विड स्टेट में होता है ना, तो इसमें तो पर्टिकुलरली मेंटल लिक्विड में होता है या सेमी सॉलिड में होता है? सर देयर इज अ डिफरेंस इन बिटवीन लिक्विड एंड सेमी सॉलिड। ओके, मेंटल इज इन फ्लूइड लाइक, जैसे फ्लूइड होता है ना, लाइक यस सर, वाटर और हनी। हनी से भी ज़्यादा उसकी विस्कोसिटी होगी मेंटल की। ये हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर लिए डायग्राम्स दोनों। Measuring earthquakes. The earthquake event are scaled either according to the magnitude or intensity of the shock. The magnitude scale is known as Richter scale. इसको हम एक्सप्रेस करते हैं 0 से 10 तक। The intensity scale is named after Mercalli, an Italian seismologist. The range of the intensity is 1 to 12. दो टाइप से हम इसको मेजर करते हैं, मैग्नीट्यूड से और इंटेंसिटी से। जो मैग्नीट्यूड का स्केल है वो 0 से 10 तक है, और इंटेंसिटी का स्केल है 1 से 12 तक है। अर्थक्वेक के इफेक्ट्स क्या हैं? ग्राउंड शेकिंग। सर एक सेकंड पीछे जाना। सॉरी, पिछली साइड सर। जो मैग्नीट्यूड है उसको हम मेजर करते हैं स्केल 0 to 10, और जो Yes, sir. इंटेंसिटी है उसको हम मेजर करते हैं स्केल में 1 to 12। ओके सर। और ये इसके इफेक्ट्स हैं। फायर, फ्लड, ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट, avalanches, soil liquefaction, ground shaking. This is happening due to the earthquake. अभी ये है PYQ। डिस्कस करते हैं। सौरभ, यस सर। व्हाट इज आंसर
of this question? The polar surface related to focus of the earthquake is called epicenter. पक्का? Yes, sir. Yes. दीपक? क्या आंसर होगा इसका? मेंटल जब भी हम ना PYQ अटेम्प्ट करेंगे ना अभी, तो ये मैटर नहीं करता कि आपका आंसर सही है या गलत है। मैटर ये करता है कि जो इसके 4 ऑप्शन है ना, इन चारों ऑप्शनों के बारे में आपको पता है या नहीं पता। सही गलत सिर्फ पेपर में मैटर करेगा। अभी मैटर ये करेगा कि इन चारों ऑप्शंस की आपके पास नॉलेज है या नहीं। क्या आंसर होगा दीपक इसका? दीपक आज ही देना आंसर। सोच रहा हूँ सर, थर्ड सी होगा शायद सर। बी। जो इनर कोर है उसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम थोड़ी ना होगा यार। अच्छा, इसमें नाइफ है, ओके। हमने किया था ना याद, नाइफ, एक नाइफ के कंसेप्ट से। नाइफ नाइफ, ओके ओके। ओके। स्विच ऑफ योर माइक। ऋतिक? यस सर। Read the question and give us the answer. क्या होगा इसका आंसर? आपको पता आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के कितना टाइम मिलेगा पेपर में? नियर अबाउट 1 मिनट। 100 क्वेश्चन होंगे, 120 मिनट होंगे। सर बी। सारे सही है। वी कैन डिस्कस। सर एस वेव कैसे पास कर सकती है स्टेनोस्फेयर से? क्या हुआ? हाँ सॉरी सॉरी, कर सकती है बट वो भी तो सेमी सॉलिड है। कौन से ऑप्शन में दिक्कत आ रही है? डी में थी बट हो गया क्लियर, क्योंकि जो स्टेनोस्फेयर है वो भी सेमी सॉलिड ही है ना। दैट इज नॉट इन अ लिक्विड स्टेट। प्रॉपर्ली नॉट इन अ लिक्विड स्टेट। सौरभ? मैं आपको ना फिर से बोल रहा हूँ, Yes, अभी sir. ये मैटर नहीं करेगा कि आप सही आंसर दे रहे हो या गलत आंसर दे रहे हो। अभी सिर्फ यही मैटर करेगा कि 4 के 4 ऑप्शन के बारे में आपके पास नॉलेज है या नहीं, अंडरस्टैंडिंग है या नहीं। Okay, sir. तो क्या सौरभ आपको ये चारों ऑप्शन समझ आ रहे हैं? Yes, sir. समझ आ रहे हैं। तो कौन सा आंसर होगा? 3. पक्का? हाँ जी सर।
ओके, ये फोर्थ वन क्यों गलत है? सर नीचे है ना। और फर्स्ट? हम्म और फर्स्ट? सर मैं उसके लिए कंफर्म नहीं था। तो फिर वो इसका शायद ग्रेनाइट छत का ऑप्शन ग्रेनाइट और वो सुना था ना मैंने, वो याद रखा था, लेकिन वो उसमें था ओशन और इसमें कॉन्टिनेंटल में। वो क्रस्ट में था। हाँ वो याद रखा था मैंने। तो जो सेकंड ऑप्शन है, सर इसका कहीं जिक्र नहीं हुआ था हमारा, इसलिए मैंने नहीं कहा, रूल आउट कर दिया। जो थिनेस्ट लेयर है ना हमारी, यस सर, वो क्रस्ट है, फर्स्ट है और वो भी ओशन है, ओशनिक। वो भी ओशियनिक। हाँ सर। वेरी गुड।